Everyone. So, first of all, I would like to welcome class 11th. Okay, class 11th. Welcome to you all. So, class 11th, you have passed 10th class and now you are in 11th. So, I think the best decision you have done that you have taken the stream science. So, there is a two basically PCM and PCB and PCBM also possible. Okay, so yeah, basically two common things are there. Now you have completed your 10th class. In 10th class there is a subject is science. Okay, is science, and here is a subject is physics. So I am S.K. Chaudhary, PGT Physics in St. George School. So myself S.K. Chaudhary, I am teaching from last 14 years, and I have opportunity to teach you this time, and it will be a great pleasure for me. Here today, basically we will start to know what is the physics role in our number system, in our results. Okay, basically it is an introduction. So these are the physics part 1 and part 2. These are the two books you will study in 11th class, physics part 1 and part 2. And similarly in class 12th also there is a two part, physics part 1 and physics part 2. Whatever pattern I will discuss to you in today class, it will be remain same for the 12th class also. Same pattern, same guidelines given by the CBSE. So CBSE have given a few guidelines related to the physics in class 11th as well as for class 12th. So first of all, you have to qualify your class 11th exam. Then if you pass, you will reach the class 12th. Okay, so what you have to do to get a good marks or passing marks in class 11th, you have to study a physics subject. Physics in Hindi it is Bhautiki. So part 1 is there, part 2 is there. There is a two part. In 10th class, what you have done, in 10th class there is a subject science. That subject have physics, chemistry and biology. These are the three, and total marks of the 80 plus 20 is equal to 100 mark portion there. And if we talk about that physics, it will be around 24 marks. Okay, 24, 26, 27, basically 28. It will be around like this, 24 to 30. It is varied, not a fixed pattern at all, but at least 27 marks का तो आता ही आता है. Okay, now क्लास 10 से लेकर 11 तक क्या डिफरेंस आता है वो हम देखते हैं. क्लास 11th में फिजिक्स जो है वो टोटल 100 मार्क्स का है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके आ सकते हैं 100 है. ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट इसको हम थ्योरी पोर्शन कहते हैं, दूसरा पार्ट जिसको हम प्रैक्टिकल पोर्शन कहते हैं. ये 10th की तरह प्रैक्टिकल नहीं होंगे, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है. थ्योरी पार्ट को जो डेडिकेटेड मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स हैं, और प्रैक्टिकल को जो मैक्सिमम मार्क्स डेडिकेटेड हैं वो 30 मार्क्स हैं. इस तरह से जो आपका टोटल बनता है वो 100 मार्क्स बनता है. और
CBSE के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भाई मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए फॉर पासिंग, इट इज़ 23 हेयर एंड 10 मार्क्स हेयर. So these are the minimum criteria to qualify class 11th, and you have to qualify both. Okay, you have to qualify separately both. So at least 23 must be here. Okay, at least 10 must be here. If both are qualified, then you are qualified for the class 12th. If anyone you are getting a lesser marks, then you have to attempt that particular practical and theory again. Okay, in compartment and in another way. सो 12th क्लास को जाने के लिए आपको 23 तो मार्क्स लाना ही लाना होगा, और इधर प्रैक्टिकल में भी 10 मार्क्स लाना होगा. इस तरीके से है, ना कि 10th की तरीके से. सो दीज 70 मार्क्स, इफ़ वी टॉक अबाउट द थ्योरी, मैक्सिमम मार्क्स आर 70. These 70 marks are based on physics part 1 and physics part 2. So part 1 we will start. In part 2 there is no equality as such. Suppose that you thinking that 35 marks will be here, 35 marks will be here. It will be for the final examination, but if for the half yearly examination there is a 70 marks paper, 70 marks theory paper. That theory paper is having the minimum, or you can say that passing marks, minimum passing marks is 23. In that 70 marks only part 1 will come. Okay, part 1 will come in half yearly examination या term 1 examination as per the CBSE guidelines. तो 70 मार्क्स में से आपको 23 नंबर लाना ज़रूरी है पासिंग मार्क्स के लिए. और ये जब आप पार्ट 1 कर लेंगे तो यही पार्ट 1 आपको एनुअल में भी आएगा, यानी कि टर्म 2 में. एनुअल एग्ज़ाम में पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों आएंगे 70 मार्क्स के. मीन्स टू से दैट कि अगर पार्ट 1 यहाँ पर एक बार हाफ ईयरली में आता है 70 का, और अगर एनुअल एग्ज़ाम की बात करें तो एनुअल एग्ज़ाम में भी लगभग 35 मार्क्स का आएगा. अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 एनुअल एग्ज़ाम में लगभग 35 मार्क्स का आएगा. तो ये जो वेटेज रखता है पार्ट 1, ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखता है. एक बार आपको हाफ ईयरली में मिलेगा, फिर आपको एनुअल में मिलेगा, और जो पीटी टेस्ट बीच में होंगे उनमें तो मिलेगा ही मिलेगा. तो पार्ट 1 पीटीज़ में भी आएगा, पीटीज़ में तो पार्ट 2 भी आएगा. बट अगर हम देखें तो पीटीज़ में स्कोर कराएगा, हाफ ईयरली में स्कोर कराएगा, और एनुअल में स्कोर कराएगा. तो ये जो है पार्ट 1 बेसिकली हमें 3 टाइम्स स्कोर देगा, 3 टाइम. तो अगर हम पार्ट 1 को ढंग से करते हैं तो हमें इसका कई जगह फ़ायदा होगा. तो पार्ट 1 जो है फिज़िक्स पार्ट 1, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंपेयर टू पार्ट 2. ओके, अब यहाँ पर हम देखें तो फिज़िक्स में थ्योरेटिकल पार्ट 70 मार्क्स का प्लस 30 मार्क्स का हमारा जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है. तो प्रैक्टिकल जो होते हैं वो लैब में होते हैं, थ्योरी जो है वो क्लासरूम वर्क कहलाता है. तो क्लास में किया गया वर्क या ऑनलाइन ऑफलाइन हमने जो स्टडी करा है वो 70 मार्क्स को रिलेट करेगा, और लैब में किया हुआ वर्क हमें 30 मार्क्स को रिलेट करेगा. तो जैसे हम क्लास वर्क करेंगे तो उसके लिए एक अलग नोटबुक होगी, ठीक है, और जो हम लैब वर्क करेंगे उसके लिए एक अलग लैब मैनुअल होगा. ठीक है, लैब मैनुअल होगा, सेपरेट नोटबुक, सेपरेट लैब मैनुअल. उसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट जो होंगे वो एज़ पर द CBSE गाइडलाइंस होंगे. और थ्योरी में जो है हमारा आपको NCERT फिज़िक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेना होगा. ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेना होगा. पार्ट 1 पार्ट 2 के अलावा आप कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं एज़ पर योर चॉइस. ओके, या आपके फ्रेंड से या रिलेटिव से जो भी मिल जाए, जिस भी राइटर की मिल जाए, वो आप मुझे दिखा के उसको मेरे से
कंफर्म करके या स्कूल में आके कंफर्म करके रेफरेंस बुक ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एनसीईआरटी तो लेना ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बुक का पैटर्न होगा। और वो जो एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक से जो होगा मटेरियल, वो आपको डे टू डे नोट्स में, हमारे इसमें नोटबुक में नोट करना होगा। वही आपकी हेल्प करेगा आपके पीटीज़ में, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में और एनुअल एग्ज़ामिनेशन में। ठीक है, तो फिजिक्स जो है बेसिकली वो आपको हेल्प करेगा किसी भी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में, किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में, किसी भी यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, और किसी भी बेसिक एलडीसी या एसएससी की जो भी जॉब्स होती हैं उनके लिए भी। ठीक है ना, उनके लिए भी आपको हेल्प करेगा बेसिकली। तो इस तरीके से फिजिक्स का रोल इंजीनियरिंग जो कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी और गवर्नमेंट की तरफ भी जाता है, मेडिकल जो कि प्राइवेट की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ दोनों तरफ जाता है, और ये हमारे गवर्नमेंट की जो जॉब्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, और उन स्कोप्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत मेहनत के साथ पढ़ना होगा। पीसीएम हो या पीसीबी हो या पीसीएमबी हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको कॉन्टीन्यूसली क्लास अटेंड करके, नोट्स प्रिपेयर करके, बाकायदा सीरियसली आपको प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो ये फिज़िक्स का पार्ट 1 है जो कि आपको लेना है, और ये फिज़िक्स का पार्ट 2 है। ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसे ही ये क्लास 12th में ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लास 12th के लिए है, जो कि आपका सेशन आएगा 22-23। ठीक है ना, आपका 2022-23 में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो फ़िलहाल आपका जो 2021 से लेकर 22 वाला सेशन चलेगा, उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस बुक को लें, परचेज़ करें। जो डेली नोट्स, डेली आपको वर्क दिया जा रहा है, उसको सीरियसली करें, खासकर जो क्लास वर्क है प्लस जो होमवर्क है। ठीक है, जो भी आपको एक्टिविटी या जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है उसको आप करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।